नमस्कार। आज हम 10th क्लास का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चैप्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर बेसिकली फ्रॉम इंडियंस। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। वी लिव इन इंडिया एंड आवर इकोनॉमी is somehow is dependent upon agriculture. If we say that India is a agricultural country, that is very right. So we should try to understand this chapter in a very deep manner. See, जैसा मैं आप लोगों को बताता हूं कि चैप्टर को समग्र रूप से समझने के लिए, कलेक्टिव समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू बाइफरकेट इट, क्लासिफाइड इट इनटू पार्ट्स। तो मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इन तीनों पार्ट में ये पूरा चैप्टर समाहित हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। देखिए, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन। फॉर एवरी चैप्टर इंट्रोडक्शन इज वेरी मच नेसेसरी, दैट व्हाई दिस चैप्टर हैज बीन टेकन एज अ सिलेबस पार्ट। देन why we are doing this chapter, what are the causes of it, and what we are going to discuss in this chapter. All these things we are going to discuss in the introductory part. Further, the meaning of agriculture, what we mean by agriculture, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं. Then in Indian context, yes, as I told you in the beginning that it is very much important, and in Indian context it is very much necessary to understand. 4 points I have been taken that we'll discuss later on. Types of farming. हमारे यहाँ बेसिकली 3 तरह की फार्मिंग होती है. अगर आप कहें पूरे विश्व में 3 तरह की होती है तो आप कह सकते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, intensive subsistence farming, and commercial farming. In this part, in primitive subsistence farm, one more thing we will discuss, that is slash and burn. This slash and burn type of agriculture is having historical importance. In ancient times we were using this kind of agriculture. We will discuss about it. Second part, cropping pattern. What is the cropping pattern? What we mean by cropping pattern? सीजन क्या होता है, क्रॉपिंग सीजन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, राबी, खरीफ, जेड, किस समय फसलें बोई जाती हैं, कब हार्वेस्टिंग होता है. Then about major crops. Although there are so many crops has been given in your chapter, but making emphasis upon these: rice, wheat, staple food, tea and coffee, plantation, and fiber crop, cotton and jute. हमारा मेन एम्फेसिस इन मेन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स पर रहेगा. हालांकि मिलेट्स भी हैं, पल्सेस भी हैं, सीरियल्स भी हैं, बट स्टिल वी विल मेक मोर स्ट्रेस अपॉन दीज 6 पार्ट. देन दैट इज द थर्ड पार्ट. व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूवाइज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री. व्हाट वी मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस इज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड. What we mean by green revolution in a very different manner I will tell today about green revolution. Then Bhudan and Gramdan, it is a story, and in this story the entire distribution of land of our country, if not entire then maximum of the part, is dependent. We will discuss upon about this. This was the philosophy of Mahatma Gandhi and then Vinoba Bhave. Impact of globalization in इकोनॉमिक्स. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन और वो किस तरह से होता है. तो ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर पर स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जो पहला पार्ट है उससे हम लोग शुरू करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट से. वेरी फर्स्ट वन इज, इन इंट्रोडक्शन वी कैन से आवर 70 to 75% population is directly or indirectly engaged in agriculture. Agriculture contribution in GDP is quite high. Our maximum population is employed in agriculture sector. So it is very much important sector, and historically also if you will see, India is the country who feeded other countries also. But what the changes took place time to time we will discuss. So initially we are required to understand
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का, उसको लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स में से लिया गया है, एग्रो और कल्चर। एग्रो का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो इसका मतलब जब हम फील्ड को कल्टीवेट करते हैं उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्रॉप्स के लिए जब फील्ड को कल्टीवेट किया जाता है, सोइल को कल्टीवेट किया जाता है, दैट इज एग्रीकल्चर। तो हाउ वी विल डिफाइन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज आर्ट, एज ए साइंस, एज ए प्रैक्टिस in which we cultivate the soil for growing crops, plus rearing of animals also included in agriculture. We are rearing animals for getting food, wools and other materials. So agriculture in one sentence is an art in which the soil is cultivated for growing crops and rearing of animals for their products. This is agriculture. Then we will discuss about next part, that is primitive subsistence farming. You will see primitive subsistence farming नाम से ही पता लग रहा है। डिफाइन करेंगे अगर हम इसको एक सेंटेंस में इस टाइप्स को, तो किस तरह से करेंगे? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग is a kind of farming in which crops are grown for the survival of the family, not for the commercial purpose, not for selling into the market. ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, देखेंगे। पहला मैंने आपको बताया, जो क्रॉप कल्टीवेशन होता है, सोइंग ऑफ सीड होता है, हार्वेस्टिंग होता है, सारी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी होती हैं वो फैमिली के सर्वाइवल के लिए होती है, कमर्शियल यूज के नहीं होती। क्योंकि जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं, जो किसानों के पास लैंड का कब्जा होता है, वो बहुत थोड़ा होता है, लैंड होल्डिंग स्मॉल होती हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे कॉजेज हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। प्रिमिटिव टूल्स, आपकी कस्सी है, कुदाल है, हो है, डिगिंग स्टिक है, इन पुराने औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड होते हैं, किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया जाता, नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इनपुट नहीं लगाए जाते, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। उसके बाद है मॉनसून पर डिपेंड है। दिस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इन विच लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। मॉडर्न इक्विपमेंट ऑफ इरिगेशन they are not using. Again, there is a reason, land holdings are small, input cost should not increase, because this kind of farming is done for the survival of the family only. Low productivity, when land holding will be small, no chemical fertilizer will be used, no modern equipment will be utilized, then automatically production will be very small. तो दिस इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में एक और पार्ट आता है, स्लैश एंड बर्न। देखिए, स्लैश एंड बर्न जैसा नाम से ही पता लग रहा है, इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, लैंड अवेलेबल की जाती है खेती के लिए, फॉरेस्ट थे क्लियर कर दिया। जो फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद ट्रीज का जो रिमेन बचा हुआ होता है उसको बर्न कर दिया जाता है, वो जो राख होती है उसको मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। हालांकि अब रिसर्चेज कुछ और कह रही हैं, पर मैं स्लैश एंड बर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। लैंड को क्लियर किया, ऐश को मिक्स किया, उसके बाद फार्मिंग की जाती है। उस जमीन से 1 साल के लिए, 2 साल के लिए खेती की जाती है, बाद में उसको आइडियल छोड़ दिया जाता है, फर्दर मूव किया जाता है ताकि वो लैंड अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके। तो स्लैश एंड बर्न इज ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इन विच द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, deforestation took place, then the burning of the remains and mixing in the soil, farming took place, and afterwards it is left ideal for some time so that it can regain its fertility. अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है।
हमारे जो ईस्टर्न स्टेट हैं उसमें इसको झूमिंग कहा जाता है, मैक्सिको जैसी कंट्री में इसको मिल्पा कहा जाता है, रोका कहा जाता है। मतलब अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे, और ये एक मैंने बताया था आपको कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के कॉजेज क्या हैं। देखिए, एक इंटेंसिव में भी आएगा, वहां भी मैं रिपीट करूंगा। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स क्यों है? एक तो जो हमारा इनहेरिटेंस लॉ है, इनहेरिटेंस लॉ की वजह से, जैसे मान लो किसी परिवार के पास 10 एकड़ ऑफ लैंड है, उसके 2 बच्चे हैं, वो बाइफरकेट होकर के 5-5 एकड़ हो गई, फिर उसकी फैमिली आई, उसमें 2-2 एकड़ बढ़ गए। तो कहने का क्या अभिप्राय है, ऐसे फ्रेगमेंटेशन होते होते स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हो गई। इंटेंसिव में भी हम इसका डिटेल में बात करेंगे। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, तो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। वो क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हम अगर इतिहास पे नज़र डालते हैं तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की रूट्स हमें वहाँ पर मिलती हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता क्या है? पहले फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, ट्रीज को कट किया जाता है, उसके बाद उस लैंड को फार्मिंग के लिए इस्तेमाल। 3 स्टेप हैं। पहले फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, और क्लियर करने के बाद जो उसमें रिमेन बच जाते हैं उसको सोइल की ऐश में मिला, क्लियर करने के लिए उसको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। क्लियर ट्रीज को काटने के बाद जो भी कुछ बच गया उसको जला दिया, उस ऐश को, उस राख को मिट्टी में मिला दिया। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद उससे फार्मिंग क्रॉप्स ली जाती है, फिर उसको कुछ समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके, और फिर दूसरे इलाके में जा कर के फिर से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फर्स्ट forest cleared, then whatever remain is left, that is burned, that remain ashes mix up with the soil, then farming take place. After 1 or 2 years, that land left uncultivated. This is called slash and burn agriculture. अलग अलग जगह में स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम दिया है। कहीं पर झूमिंग, पैवलो, रोका, मिल्पा, अलग अलग जगह पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम दिया गया है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, इंटेंसिव नाम से ही पता लग रहा है कि हम इंटेंस एफर्ट करेंगे जमीन से क्रॉप को लेने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम इंटेंस एफर्ट करेंगे कि जो लैंड अवेलेबल है उससे ज़्यादा हम लोग बेनिफिट ले सकें। हालांकि इसमें भी लैंड होल्डिंग स्मॉल होती है, लेकिन उस पर इतनी वर्क किया जाता है, इतना इनपुट डाला जाता है, मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन को लिया जा सके। देखते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग is a kind of farming in which maximum efforts are made, maximum inputs are given so that the maximum production can take place. Maximum production, लेबर बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, कैपिटल पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जाता है प्रोडक्शन के लिए। उस लैंड होल्डिंग स्मॉल होती है, जैसे प्रिमिटिव, हालांकि उससे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन प्रिमिटिव की तरह ही यहाँ भी लैंड होल्डिंग स्मॉल होती है। इंटेंसिव यूज़ किया जाता है, केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को ग्रो किया जाए। मेडिकेशन, दवाई का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फसलों में होने वाली जो डिजीज़ हैं वो ना हो, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट? व्हाट आर द एडवांटेजेस वी आर गेटिंग एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस इट इज़ लीडिंग विद? तो फर्स्ट इज कॉजिंग। एक कॉज तो ये है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से फूड की डिमांड बढ़ रही है। अब फूड की डिमांड बढ़ेगी तो बट ऑफ कोर्स हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग
एक लैंड से क्रॉप को ले सकें, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो वन कॉज इज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड सेकेंड वन इज इनहेरिटेंस लॉ। इनहेरिटेंस लॉ क्या होता है? जब फादर की ज़मीन को सन में या डॉटर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो ज़मीन को जो दादालाही ज़मीन है, मान लेते हैं किसी परिवार के पास 10 एकड़ ऑफ लैंड है, उस घर में 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो उस 10 एकड़ लैंड को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, करीबन 3-3 एकड़ से भी ज़्यादा उनको लैंड मिल गई। फर्दर जब उनकी जो चिल्ड्रन होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उस लैंड को फिर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आते 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 लैंड का टुकड़ा बहुत स्मॉल रह जाता है और फैमिली की रिक्वायरमेंट वैसी ही है। तो इस वजह से मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक फील्ड से हाई यील्ड क्रॉप ली जाए। एडवांटेजेस क्या है? हाई यील्ड, उसी लैंड से ज़्यादा फसल प्राप्त की जाती है, मोर वैरायटी ऑफ फूड हमें मिलता है, ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग गेन कर पाते हैं क्योंकि मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल्स यूज़ करेंगे, मैन्योर यूज़ करेंगे, तो हमें उस ज़मीन से ज़्यादा क्रॉप मिलेगी। ज़्यादा क्रॉप मिलेगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिसएडवांटेज क्या है? इतने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स को, पेस्टिसाइड को, मेडिकेशन को यूज़ करने की वजह से ह्यूमंस में कैंसर हो रहा है। कैंसर होने की सबसे बड़ी जो रीज़न है वो इन केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है। उसके अलावा आप देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है ताकि लैंड को कल्टीवेटेड या एग्रीकल्चर के लिए बनाया जा सके। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये वाटर पॉल्यूशन इसकी वजह से हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, नहीं तो ह्यूमन लाइफ को खतरा पैदा हो रहा है और बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। आगे हम लोग देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग, एज द नेम इज इंडिकेटिंग कमर्शियल। दिस फार्मिंग इज इनिशिएटेड फॉर कमर्शियल पर्पज ओनली। मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए इस तरह की फार्मिंग को किया जाता है, जिसमें प्लांटेशन भी आता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े टी के जो गार्डन हैं, बाग हैं आसाम में, कॉफ़ी के बाग हैं कर्नाटका में, इसके अलावा भी और सारी चीज़ें जो होती हैं जिसमें बड़ी लैंड होल्डिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज स्केल पर फार्मिंग की जाती है, वो होता है कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच a single crop is grown over a large area for the commercial purpose, for the market purpose. That is commercial type of farming. देखेंगे, पहला मैंने बता दिया कमर्शियल यूज के लिए होता है। दूसरा क्या है? वेरी बिग लैंड होल्डिंग्स, बड़े लार्ज स्केल पर सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेबर इंटेंसिव है, बहुत सारा कैपिटल लगता है, पैसा लगता है, मैनेजरियल क्वालिटी की आवश्यकता होती है मैनेज करने के लिए। HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा फसल ली जा सके। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। कह सकते हैं कि जितने भी मॉडर्न इनपुट हो सकते हैं उस सिंगल क्रॉप के लिए, जिसे लार्ज स्केल पर बोया जाता है, उसके लिए, उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। प्लांटेशन इसी का एक हिस्सा है। तो आई थिंक कमर्शियल फार्मिंग इज़ वेरी मच क्लियर कि एक ही सिंगल क्रॉप को बहुत बड़ी लैंड पर बोया जाता है, उसके लिए सभी मॉडर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिक पर्पस होता है कमर्शियल इस्तेमाल करना, मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये 3 टाइप ऑफ आपकी फार्मिंग थी। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली, सेकेंड इज इंटेंसिव एंड द थर्ड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये टुकड़ों में आ जाता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसी तरह से इंटेंसिव का
और कमर्शियल का। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न, कि किसी भी देश के क्रॉपिंग पैटर्न को हम समझने, खास करके अपने देश के क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, ये पार्ट हमने कर लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन कंटेक्स्ट में और टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसके बाद जो क्रॉपिंग पैटर्न आता है, क्रॉपिंग पैटर्न आप कह सकते हैं, क्रॉपिंग सीजन अलग से है। देखिए क्रॉपिंग पैटर्न हमारे देश का अलग अलग है, उसका कारण है हमारे देश में बहुत सारी जो फिजिकल डाइवर्सिटी हैं, जो फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं। हमारे देश में माउंटेन मिलते हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल एरिया है, डेजर्ट है, इसकी आइलैंड है। इसकी वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है हर इलाके का अलग अलग है। इसके अलावा जो प्लुरलिटी ऑफ कल्चर है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर को फॉलो किया जाता है और उसी कल्चर से संबंधित एग्रीकल्चर है। कल्चर से रिलेटेड ही क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। हालांकि क्लाइमेटिक कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमारे देश में कल्चर के साथ भी एग्रीकल्चर को एसोसिएट किया गया है। यहाँ पर हम क्रॉपिंग सीजन के बारे में बात करेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी मीन बाय क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन होता क्या है? जो टाइम होता है सीड को ग्रो करने का और उस फसल को हार्वेस्ट करने का, उसके बीच के जो समय होता है उसको क्रॉपिंग सीजन कहा जाता है। क्रॉपिंग सीजन इज द टाइम बिटवीन सोइंग ऑफ सीड एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, दैट इज क्रॉपिंग सीजन। हमारे देश में 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन पाए जाते हैं, राबी, खरीफ एंड जेड। मैंने आपको बाइफरकेट करके बताया है कि राबी में क्रॉप्स को ग्रो कब किया जाता है, सोइंग ऑफ सीड कब होता है, हार्वेस्टिंग कब होती है, उसके बाद जो क्रॉप है कौन कौन सी इन सीजन के अंडर आती हैं जिनको ग्रो किया जाता है, और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिस पर एम्फेसाइज डाला जाता है। तो हम देखेंगे कि जो राबी क्रॉप है उसको हम लोग अक्टूबर और दिसंबर में बोते हैं और उसको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल और जून में। यानी कि सर्दियों के सीज़न जैसे ही शुरू होता है हम लोग सीड्स को बो देते हैं, ग्रो कर देते हैं, और अप्रैल और जून में जा कर के उस फसल को काट लिया जाता है। तो राबी इज ए क्रॉपिंग सीजन इन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, मीन्स यू कैन से द स्टार्टिंग ऑफ विंटर। देन the crops are harvested in the month of April and June. Main crops are wheat, barley and mustard. Although it is practiced in many of the states, but the largest state which follow the Rabi season, that is Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir. Same way the next one is Kharif. खरीफ में जो फसल को बोया जाता है that is on the onset of the monsoon. जैसे ही मॉनसून की शुरुआत होती है बीज को बो दिया जाता है, क्योंकि इनमें वो फसलें होती हैं जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। केवल इरिगेशन जो हम ट्यूबवेल से, नहरों से लेते हैं उससे काम नहीं चलता, उससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, इनपुट ज़्यादा लगता है। इसलिए ऐसे समय में इन फसलों को बोया जाता है जब मॉनसून, जब ये जैसे ये समय आया हुआ है, अब 10-15-20 दिन में मॉनसून आ जाएगा, बारिश की वजह से पानी मिलेगा फसलों को और फसलों से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। इट्स मीन डिपेंडेंसी अपॉन मॉनसून। तो राबी में खरीफ में जो फसल है ऑनसेट ऑफ मॉनसून में, जून के मंथ में इसको बोया जाता है और सर्दियों के शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में इसको फसल को काट लिया जाता है। तो खरीफ सीजन is that season in which crops are grown on the onset of monsoon and harvested in the month of September and October. The main crops are rice, cotton, jute, etc. All that crop in which maximum water is needed. Then we comes to the Z. एक और सीजन हमारे पास है जो अब चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि तरबूज, खरबूजा और खीरा, इनकी मात्रा बहुतायत में आप लोगों को मार्केट में मिलेगी। जगह जगह पर जो रेहड़ी हैं उनमें ये फ्रूट बिक रहा है। जेड सीज़न होता है जो खरीफ और राबी के बीच में होता है, दोनों सीज़न के बीच में। जब हमारी
राबी की क्रॉप को काट लिया जाता है, ठीक है। उस समय खरीफ को लगाने का समय होता है, उससे पहले एक सीज़न आता है जेड सीज़न। बेसिकली इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सोयल की फर्टिलिटी है, लैंड की जो फर्टिलिटी है, अगर हम लगातार एक ही फसल को बोएंगे तो उससे होगा क्या, तो जो न्यूट्रिएंट सोयल में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे और लैंड बैरन हो जाएगी। इसलिए हम लोग बदल बदल करके फसलों को उगाते हैं। उसी में एक जेड का आता है कि बीच में राबी और खरीफ के बीच में, तो जेड इज द सीजन इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड हार्वेस्टिंग इन बिटवीन द खरीफ एंड राबी सीजन। तो ये इस तरह से 3 हमारे क्रॉपिंग सीजन हैं। आई होप द थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट यू मीन बाय क्रॉपिंग सीजन एंड एक्सप्लेन राबी और खरीफ और जेड, द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। देखिए, मैंने देखा था कि किसी भी लेक्चर को 30 और 40 मिनट से ज़्यादा मैं लेकर के नहीं जाऊंगा। उसका कारण है कि यहाँ पर क्लास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर 30 और 40 मिनट के लेक्चर का मतलब है 1 आवर मोर देन इट, बिकॉज क्लास में तो इंटरेक्शन होता है, किसी बात को पूछ लिया जाता है और उसमें टाइम लग जाता है, इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होती, कुछ पॉइंट डिस्कस होते हैं। एक चैप्टर को हम 4, 5, 6 लेक्चर्स में करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लगातार रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, मेरे द्वारा लिखा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, और उसमें थोड़ा जल्दी हो रहा है, जिसकी वजह से 30 to 40 मिनट का लेक्चर इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को, इन्हीं कारणों से मैं आज यहाँ रोकता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।